Hello friends, today we will learn about nutrition in human beings. What is the meaning of nutrition in human beings? Nutrition in human beings is the process of intake of essential nutrients in the form of food. We eat food, हम खाना खाते हैं और उसकी वजह से हमें essential nutrients मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और वो हमारी लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं. So what kind of nutrition is found in human being? So if we talk about nutrition found in human beings, it is called as holozoic nutrition. It is called as holozoic nutrition. Now let's study what is the meaning of holozoic nutrition. If I have to say in simple definition, holozoic nutrition means nutrition or digestion in which complex and large component of foods are broken down into their respective simple and smaller forms with the help of various hydrolytic enzymes. Yes, हमारा जितना भी हम फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं एंड क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स बहुत टाइनी होते हैं तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं. वी वांट न्यूट्रिएंट इन सिंपल फॉर्म्स. तो ये जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम जो डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, इट इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड ऑब्वियसली with the help of digestion process. Okay, so let's study in detail what is the meaning of digestion in human being. If I have to talk about digestive system of human being, it consists of a long tube which is around 7 to 8 meter long and it is called as alimentary canal. हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल जो कि एक बहुत लॉन्ग ट्यूब होता है उसमें टेक प्लेस करता है. यू कैन सी हियर, दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल. इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ एंड एंड्स टू योर एनस. इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्यूब, अराउंड 7 to 8 meter long. It consists of various digestive glands and various digestive enzymes. We will study about it in detail later. Now if I have to talk about alimentary canal, it is the long tube where the entire process of digestion takes place. If I have to say about alimentary canal, अगर मुझे alimentary canal के बारे में बताना होगा तो वो एक coil tube like structure होता है जो सबसे long tube structure होता है और इसी में सारा digestion होता है, which runs from the anterior mouth to the posterior anus. अगर हम बात करेंगे तो ये anterior position है और ये posterior यानी कि downward position है. शुरू ये माउथ से होता है और ख़त्म ये किस पे होता है, एनस पे. द मेजर पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर माउथ. देन अगर हम माउथ की बात करते हैं तो माउथ में टीथ आ जाते हैं, आपका टंग आ जाता है एंड ये जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं आपके डाइजेशन में और यह फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने में. फिर आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल में वेरियस पार्ट्स, इसोफेगस, then comes stomach, then comes smaller intestine and then comes large intestine. Large intestine, yes, जिसे हम कोलोन भी बोलते हैं. If we talk about the digestive glands, then the digestive glands which are included in digestion are salivary glands which are found in the mouth, salivary glands, and then it's gastric glands which are found in stomach. We will study about their functions and the secretion in detail later. Then there is liver. Yes, liver is the biggest digestive gland. Yeah, it is the biggest digestive gland, liver. Then there are intestinal glands and then there is a pancreas. You can see pancreas here between stomach and large intestine. These are some digestive glands which help in the digestion of food. If we talk about digestion of food, it is divided into two parts, that is mechanism of digestion of food and process of digestion of food. So if I have to talk about mechanism of digestion of food, it includes 5 stages. First stage is ingestion. First stage is what?
ingestion in mechanism of food. See, question comes in two ways. Explain the process of digestion, or sub questions according to the glands or the organs and related to their secretive juices, or the process or the question comes in with a well labeled diagram, explain the mechanism of digestion of food. So you should be very much aware what is the difference between mechanism of digestion of food and what is the process of digestion of food. If we talk about mechanism of digestion of food, then it includes 5 steps. First step is ingestion. In ingestion process, food is taken inside the mouth. Food is taken inside the mouth and it is broken down or it is chewed. फूड को हम क्या करते हैं, च्यू करते हैं, उसको बाइट करते हैं इनटू स्मॉलर एंड इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. प्लस व्हाट डज टंग हेल्प? इट हेल्प्स टू मिक्स सलाइवा इन इट. सलाइवा ये एक सिक्रीशन होता है जो कि हमारे टंग सिक्रीट करता है. सलाइवा इज मेस्टिकेटेड और इट मिक्सेस विद द फूड एंड कन्वर्ट्स इनटू very small particles, and this mixture of saliva and food pieces is called as bolus. Yes, this bolus is taken inside through फूड पाइप. वाई वी च्यू द फूड? अगर हम फूड को च्यू नहीं करेंगे या उसको छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो हमें स्वॉलो करने में, हमें निगलने में दिक्कत होगी. क्योंकि अगर हम बात करते हैं हमारी जो फूड पाइप होती है, फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होती है. ये बहुत सॉफ्ट होती है प्लस बहुत थिन होती है. तो इस रीज़न की वजह से हमें फूड को च्यू करना पड़ता है. This process of chewing the food and converting into smaller pieces and mixing saliva in it and making it a bolus, that process is called as digestion. We chew the food by the help of teeth. Now next process takes place, digestion. In mechanism, if we have talked about second step, then that second step is about digestion. It takes place through the gut line. In this, if you know what is the meaning of digestion, the process of breaking down large organic molecules. For example, we are taking carbohydrate as organic molecule. ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट को लिया रोटी के रूप में, रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है. It will be converted to form glucose as simple molecule by our body. कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल है. तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इनिशिएट्स इनसाइड माउथ. स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर बाय सलाइवरी अमाइलेज. पार्शियल डाइजेशन तो आपका माउथ में ही शुरू हो जाता है. मैंने बताया था यहाँ पे आपका माउथ है जहाँ पे सलाइवा मिक्स होता है. सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है. मैंने आपको पहले ही बताया था डाइजेशन में एंजाइम्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है. सलाइवरी अमाइलेज का जो फंक्शन है, ये एक एंजाइम है. इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नॉट कंप्लीट डाइजेशन बट पार्शियल डाइजेशन. कैसे होगा वो हम आगे पढ़ेंगे. प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स. Emulsification of fats is done with the help of bile juices. Breakdown of emulsified fat is done by lipase, and formation of amino acid, glucose and fatty acid with the help of pancreatic and intestinal juices takes place in the process of digestion. अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट किया जाता है इनटू शुगर. जो प्रोटीन्स होते हैं इन्हें पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया जाता है. प्रोटीन्स को काय में कन्वर्ट करा जाता है? पेप्टोन्स में. और इसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट करती है उनका नाम होता है पेप्सिन एंड रेनिन. पेप्सिन एंड रेनिन आर द एंजाइम्स विच टेक्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. देन फैट्स जितना भी हम लेते हैं उसको इमल्सीफाई करना, वो क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे. इट इज़ डन बाय लीवर विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस. बाइल जूस होता है जो कि एक सिक्रीशन होता है विच इज सिक्रेटेड बाय लीवर
इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ये सब हमारा होता है पैंक्रियाटिक और इंटेस्टिनल जूसेस से। ये सब प्रोसेस होता है डाइजेशन का। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है, वो है एब्सॉर्प्शन का, जो कि पूरी, जिसे हम कंप्लीट डाइजेशन भी बोलते हैं। इट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अंदर कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, यस, वहाँ पे एब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस करता है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड पासिस फ्रॉम द एलिमेंट्री कनाल इनटू द ब्लड। क्योंकि अगर मैं बात करूँगी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, इसके ऊपर ब्लड वेसल्स कवर्ड होते हैं, जो कि एब्सॉर्प्शन करते हैं माइक्रोमोलिकुल्स का, और ये रिक्वायर्ड ऑर्गन को वो प्रोवाइड कराते हैं। ऑल द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन विच हैज़ न्यूमरस विलाई एंड लेस्ट्रल्स, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन। इसको भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट प्रोसेस कम्स द एसिमुलेशन। मैकेनिज्म ऑफ फूड में नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एसिमुलेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट टू वेरियस cells of body. The villi in the small intestine are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair the old one. Assimilation process क्या है? ये जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड जो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स जो कन्वर्ट हो जाता है सिंपल फूड में आफ्टर डाइजेशन, इसे टिश्यूज़ जो है या सेल्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमुलेशन। इजेशन, अब क्या होता है, क्या हम सारा फूड यूटिलाइज करते हैं? नो, लॉट्स ऑफ फूड रिमेन अनडाइजेस्टेड। बहुत सारा खाना जो है वो अनडाइजेस्ट रहता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इट इज़ पास थ्रू द लार्जेस्ट एलिमेंट्री कनाल, और एलिमिनेशन करा जाता है थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको कोलॉन भी बोला जाता है। So the elimination of undigested food formed in the colon of the large intestine through anus is called egestion. यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, जब हम feces के रूप में, when we pass out feces, that means we are throwing out undigested food. We are throwing out undigested food from our body. This process is called as egestion. This process is called as what? Egestion. So I hope you have understood what is the mechanism of food. In next video we'll study about digestion of